آج ویو 360 میں پاکستان کی افغان طالبان پر پابندیوں کے بعد ملاقاتیں، اسلام آباد کی حکمت عملی ہے کیا؟ کرونا وائرس سے بچاؤ کی حکمت عملی پر تنقید کے باوجود معاشی بحالی کے لیے صدر ٹرمپ میں ووٹروں کا بھروسہ قائم۔ میں اگر پرسنلی بولوں تو دماغ بہت ڈسٹرب اور ڈپریشن میں رہتا ہے۔ اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 1 سال سے تعلیمی ادارے بند، طلباء نفسیاتی دباؤ کا شکار۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان آئے افغان طالبان کے وفد کی اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کو کابل اور واشنگٹن میں غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس دورے میں طالبان کی اعلیٰ قیادت نے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان کی سیاسی صورتحال اور بین الافغان مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا اور پاکستان نے افغان امن عمل کو سبوتاژ کرنے والے عناصر کے بارے میں بھی طالبان کو آگاہ کیا۔ لیکن یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان نے حال ہی میں طالبان پر اقوام متحدہ کی جانب سے لاگو پابندیاں عائد کرنے کی توثیق کی ہے اور FATF کی شرائط کو پورا کرنے کی سمت میں قدم اٹھایا ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان، افغان حکومت اور طالبان اس وقت ایک دوسرے پر کس حد تک بھروسہ کر سکتے ہیں، اس بارے میں میری کچھ دیر پہلے بات ہوئی پاک افغان خطے کے لیے امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی رچرڈ آلسن سے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کی پالیسی میں تضاد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے 2 مختلف مقاصد کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ طالبان کے خلاف پاکستان کی اعلان کردہ پابندیوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے پیچھے پاکستان کی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ممکنہ پابندیوں سے بچنے کی مربوط اور سنجیدہ کوششیں ہیں۔ میرے خیال سے پاکستان کے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے یہ لازمی ہو چکا تھا اور پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ طالبان کے حوالے سے یہ پاکستان کی کوئی شعوری حکمت عملی تھی، بلکہ یہ پاکستان کے قومی مفاد کا سوال تھا۔ ایمبیسڈر، ایک طرف تو پاکستان افغان طالبان پر پابندیاں لگا رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات، اس میں اسلام آباد کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کا طالبان کے ساتھ دیرینہ تعلق رہا ہے، اور یہ کہ امریکہ اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے۔ لیکن اب میرے خیال سے پاکستان اور امریکہ کے مقاصد میں کچھ حد تک ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ دونوں ہی قیام امن کے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ملا برادر اور طالبان پولیٹیکل کمیشن کے حالیہ دوروں سمیت پاکستان کی اوور آل پالیسی کی تشریح بھی میں اسی طرح سے کروں گا۔ اس ملاقات سے پہلے پاکستان کے محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ طالبان کے ساتھ ملاقات کا مقصد ان پر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے زور ڈالنا ہے۔ یہ ایک اہم پیغام ہے، کیونکہ طالبان کو تو بہت عرصہ پہلے مذاکرات کی میز پر آ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کے زیادہ تر مطالبات پورے ہو چکے ہیں۔ امریکی افواج کے انخلاء کا ٹائم ٹیبل دیا جا چکا ہے اور ان کے مطالبے پر زیادہ تر طالبان قیدی بھی رہا کیے جا چکے ہیں، اور یہ وہ پیغام ہے جو پاکستان انہیں دے رہا ہے۔ قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر انٹرا افغان مذاکرات شروع نہیں ہو پا رہے۔ کچھ قیدیوں کی رہائی پہ تحفظات ہیں آسٹریلیا اور فرانس کو۔ اب یہ مسئلہ آگے چل کر کیسے حل ہوگا؟ اس کے لیے دوحہ معاہدے کی یاد دہانی ضروری ہے جو 29 فروری کو طے پایا تھا۔ اس کے مطابق امریکہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ 5000 تک قیدیوں کی رہائی کے لیے کام کرے گا۔ یہ تعداد 5000 نہیں بلکہ 5000 تک ہے، اور میرے حساب سے اب تک 4680 کو رہا کیا جا چکا ہے۔ یہ تعداد 5000 کے بہت قریب ہے۔ بقیہ کچھ قیدیوں کے بارے میں کچھ ممالک نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ متعلقہ طالبان قیدیوں کے ہاتھ ان ممالک کے شہریوں کے خون سے رنگے ہیں۔ اب میرے خیال سے طالبان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ افغان حکومت نے اعتماد سازی کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے ہیں اور انہیں مذاکرات کے لیے میز پر آنا چاہیے۔ ایمبیسڈر، طالبان کے نمائندوں کی طرف سے پاکستان کے اس دورے کا کابل اور اسلام آباد کے تعلقات پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟
Well, I think that this is, as I said, there's a greater degree of alignment now. मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता कई सालों के मुकाबले में अब पॉलिसीज़ और मफादात में ज़्यादा हम आहंगी है। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से अब इत्तफ़ाक़ राय है। हुकूमत पाकिस्तान अमन अमल को सपोर्ट देने और उसके लिए तालिबान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़्म है, और ये मकासद अमरीकी मकासद से हम आहंग हैं, लिहाजा मफादात में हम आहंगी है। इसको जारी रखते हुए अब अमन अमल को इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और अब कुछ बात अमेरिका में जारी इंतखाबी सरगर्मियों की। अगरचे रायामा के जायज़ों में कोरोना वायरस और नस्ल की बुनियाद पर नाइंसाफियों को दूर करने के मामलात में सदर ट्रंप अपने हरीफ जो बाइडन से पीछे नजर आते हैं, लेकिन मईशत एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इन दिनों रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन कोरोना वायरस के बाइस बड़ी हद तक वर्चुअल हो रहा है। रियासत नॉर्थ कैरोलिना के शहर शार्लेट में जहां अब कन्वेंशन की सिर्फ महदूद सरगर्मियां ही जारी हैं, लोग मुआशी तरक्की बहाल करने में सदर ट्रंप की सलाहियत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। कोरोना वबा और अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर ट्रंप अपने डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडन के मुआशी नुक्ते नजर को रद्द करते हुए मईशत की बहाली के अपने वादों पर तवज्जो देते आए हैं। Biden the other day said no, he'd shut it down. बाइडन ने उस दिन कहा कि नहीं, वो इसे बंद करेंगे। हमने रोजगार के हवाले से सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे कोई 3 माह नहीं गुजरे जब हमने ज्यादा लोगों को काम पर ना लगाया हो। 90 लाख से ज्यादा अफराद, और एक बार फिर हम स्टॉक मार्केट का पिछला रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। Break the all-time stock market record. I mean, you look at it, we're just about ready to. सदर ट्रंप को बाकायदा तौर पर रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार नामजद करने वाले डेलीगेट्स या पार्टी मंदूबीन का कहना है कि उन्हें एतमाद है कि वो अमरीकी मईशत को तरक्की देंगे। Before the pandemic hit, the economy was incredible. कोविड से पहले मईशत नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत थी। अब जानते हैं हमारे यहाँ बेरोजगारी की सतह में रिकॉर्ड कमी थी। स्टॉक मार्केट हर रोज रिकॉर्ड बना रही थी। हर जगह मईशत वाकई मजबूत है। ये वबा सिर्फ आर्जी है, ये आखिरकार खत्म होने वाली है और कारोबार दोबारा शुरू होने वाले हैं। तो सवाल ये है कि मईशत की तामीर नो का तजुर्बा किसके पास है? He owns like 15 hotels. वो मंदूबीन भी जो समाजी फासले की वजह से कन्वेंशन में शिरकत से कासिर हैं, मौजूदा बेरोजगारी की जिम्मेदारी सदर पर नहीं डालते। I don't think people are necessarily blaming. मुझे नहीं लगता कि लोग कोविड के बाइस शटडाउन पर सदर को ही मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। शिमाली कैरोलिना के शहर शार्लेट में मेहमान नवाजी की सनत में कुछ कारोबारी मालकान जो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन से हासिल होने वाली आमदनी पर इन्हिसार कर रहे थे, उनका कहना है कि उन्हें सदर ट्रंप की मईशत को बहाल करने की सलाहियत पर अब भी यकीन है। Economy is doing pretty decent. If you look at it, I mean, मुझे लगता है कि मईशत बहुत अच्छे अंदाज में चल रही है। मैं समझता हूँ कि हम अभी माशी नुक्ता नज़र से एक अच्छी जगह पर हैं। मुझे सदर ट्रंप की इक़्तिसादी पॉलिसियाँ पसंद हैं। मेरे ख्याल में अगर सदर ट्रंप ट्वीट्स कम कर दें तो उन्होंने पिछले 1.5 माह में उम्दा काम किए हैं। and which I think he's done a fantastic job over the last month and a half. लेकिन होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफेज में काम करने वालों को कोविड ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। इन बिजनेसेस में काम करने वाले 1/4 से ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। ये अमेरिका में कुल बेरोजगार होने वालों का तकरीबन 1/3 है। Well, I think the only way I personally feel that we can. मैं ज़ाती तौर पर यह महसूस करता हूँ कि हम इस वबा का खात्मा करके मईशत को बहाल कर सकते हैं। बहसीयत कौम हमें यह फैसला करना होगा कि हमें यह काम पहले करना है। We have to do that first. सदर ट्रंप अमरीकी अवाम के सामने अपने नुक्ता नजर पेश करते रहेंगे क्योंकि ये वर्चुअल कन्वेंशन हफ्ता भर जारी रहेगा। ईशा सराय की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। Pakistan has much to gain. लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
रिपब्लिकन पार्टी वैसे तो कदामत पसंद नजरियात की हामी है, मगर तारीखी एतबार से इसकी नजरियाती समत का इन्हिसार इस बात पर भी रहा है कि पार्टी की क़यादत कर कौन रहा है और मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। आइए एक नजर डालते हैं रिपब्लिकन पार्टी की दिलचस्प तारीख पर। रिपब्लिकन पार्टी वफाक में छोटी हुकूमत और कदामत पसंद समाजी पॉलिसियों की हिमायत के लिए जानी जाती है, मगर ये जमात हमेशा ऐसी नहीं थी। अमेरिका की शिमाली रियासतों से ताल्लुक रखने वालों ने 1854 में इस पार्टी की बुनियाद रखी। ये अफराद मगरबी रियासतों में गुलामी को फैलाने के खिलाफ एक मजबूत वफाकी हुकूमत चाहते थे। सन 1860 में पार्टी के दूसरे ही उम्मीदवार अब्राहम लिंकन मुल्क के सदर बने और गुलामी को खत्म किया। खाना जंगी में शिमाली रियासतों की फतह के बाद रिपब्लिकन पार्टी आइंदा 70 बरस तक मुल्क की सियासत पर हावी रही। इसी दौरान पार्टी ने वफाकी हुकूमत के इख्तियारात को वुसअत देने पर जोर दिया और पार्टी रहनुमाओं ने आइन में 15वीं तरमीम के जरिए स्याह फाम अमरीकी मर्दों के लिए वोट के हक की हिमायत भी की। मुल्क में बदतरीन माशी बदहाली या ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स को हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया तो सियासत पर इस पार्टी का गलबा खत्म हुआ। आइंदा निस्फ सदी तक ज्यादातर डेमोक्रेट्स ने कौमी सतह पर कंट्रोल जमाए रखा। इस अरसे में सिर्फ एक मर्तबा रिपब्लिकन सदर इख्तिदार हासिल कर पाए। डेमोक्रेट्स की जानिब से ग्रेट डिप्रेशन के दौरान वफाकी हुकूमत के इख्तियारात के फैलाव के जवाब में रिपब्लिकन पार्टी ने कदामत पसंद नजरियात अपनाए। दोनों जमातों की पॉलिसियों में तब्दीली के बाइस उनके हामी गिरोहों में भी तब्दीली हुई। बहुत से स्याह फाम अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए, जबकि मुल्क की जनूबी रियासतों में बेशतर सफेद फाम अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ राग़िब होते गए। 1980 की दहाई में अपनी पॉलिसियों की वजह से सदर रोनाल्ड रेगन ने मुल्क की अक्सरियत में कामयाबी हासिल की। हालिया कुछ तिहाइयों में दोनों सियासी जमातों के सुदूर बारी बारी इख्तिदार में आते रहे हैं। रिपब्लिकन सुदूर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप वफाकी हुकूमत के निस्बतन कम किरदार और समाजी पॉलिसियों में ज्यादा दाएं बाजू के नजरियात के हामी हैं। अमरीकी इंतखाबात के अलावा दुनिया भर की अहम खबरों और पाकिस्तान में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स पर नजर रखने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa और फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/voa urdu। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में पहले सियासी वजूहात की बुनियाद पर आयद की जाने वाली बंदिशों और फिर कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे पिछले 1 साल से बंद पड़े हैं। नतीजतन तालिब इल्मों की सरगर्मियां धर्म भरम हो गई हैं। तलबा को डर है कि वो भारत में कौमी सतह के इम्तिहानात में दूसरी रियासतों के तालिब इल्मों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जबकि माहिरीन नफ्सियात को तशवीश है कि यह सूरत हाल नौजवानों की ज़हनी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। श्रीनगर से जुबैर डार की रिपोर्ट। मोहसिन अली श्रीनगर के एक स्कूल में 11वीं जमात के तालिब इल्म हैं, लेकिन 1 साल से स्कूल नहीं गए क्योंकि स्कूल बंद पड़ा है। वो घर पर पढ़ाई तो करते हैं, मगर ये इनके लिए क्लासरूम का मुतबादिल नहीं। इन्हें डर है कि वो भारत के दूसरी रियासतों के तलबा से बहुत पीछे रह गए हैं। जो ज़्यादा इफेक्ट कश्मीरी स्टूडेंट्स पे पड़ा है, क्योंकि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कूप अप नहीं कर पाएंगे। फिर लास्ट में हमारी लाइफ ड्रास्टिकली बहुत चेंज हो गई है स्टूडेंट्स की लाइफ। जो लॉकडाउन से पहले जो हमारी एक्टिविटी थी, हम सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में हम जो टीचर्स पढ़ाते थे वो घर आके रिवाइज करते थे, वो सारा जो एक्टिविटी है, जो रूटीन थी हमारी, वो सारी बिगड़ गई इस लॉकडाउन की वजह से। मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो दिमाग बहुत डिस्टर्ब, डिप्रेशन में रहता है। माहिरीन तालीम और नफ्सियात मोहसिन अली की इस परेशानी को बेजा नहीं समझते। वो कहते हैं कि तालीमी इदारों के तवील अरसे से बंद रहने से न सिर्फ तालिब इल्मों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है, बल्कि इनमें नफ्सियाती पेचीदगियां भी पैदा हो रही हैं। वो हमारे पास अक्सर पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, टीचर्स के फ़ोन आते हैं कि एटीट्यूडल प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, बच्चे नॉर्मली अब बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। इन हालात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, तो बच्चों में कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस है, काफ़ी डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं और हमें ये डर है कि पता नहीं कि ये नेगेटिव जो ये डेवलपमेंट हो रही है पर्सनैलिटी की, ये कहाँ पे हमारे बच्चे कहाँ लैंड कर पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। हुकूमत भारत ने अंदिया दिया है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र स्कूलों को इस साल के आखिर तक बंद रखना पड़ सकता है। इस दौरान यहाँ श्रीनगर में कायम चाइल्ड वेलबींग सेंटर में मेंटल हेल्थ के 124 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तकरीबन 800 बच्चे उनसे जहनी सेहत के हवाले से फ़ोन पर मशवरा ले चुके हैं।
माहिर नफ्सियात खबरदार करते हैं कि अगर इस सूरत हाल पर जल्द काबू न पाया जाता तो तालिब इल्मों में नजर आने वाला जहनी दबाव डिप्रेशन और मजीद संजीदा अमराज में बदल सकता है। और डोमेस्टिक वायलेंस जो रिपोर्ट की है, देयर इज 72% इंक्रीज इन फैमिलीज। तो जब माँ बाप की भी जो जहनी सेहत है वो ठीक नहीं रही है तो बच्चों पर भी डबल असर उसका पड़ेगा। तो जब उनको अपना जो डेली रूटीन से उनसे हटाया जाए कि बाहर न जाना, ऐसे खेलना नहीं है, इम्पोर्टेंटली खेल कूद बंद हो गया, तो उनका नेगेटिव इफेक्ट उन पर रहा है कि अगर अनकंट्रोल्ड रहा तो जो आज का मामूली स्ट्रेस है बच्चों को, कल वो डिप्रेशन में चेंज हो सकता है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में काम करने वाले कई मकामी और बैनुल अक़वामी सरकारी तंजीमों का कहना है कि वो अब अपनी सर्विसेज का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। There's a two aspect of mental health. One is curative and one is preventive. So definitely we are working on the preventive part, not a curative part. So curative part जो है हमारे पास 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है वो curative part पे, जो अभी जो मुझे लग रहा है कि Save the Children now need to work in even for curative part also. But क्योंकि अभी हमारा परसेंटेज और ये बहुत ज्यादा है और एरिया बहुत ज्यादा है, तो अभी मतलब ऐसा जेन के फील दैट वी शुड वर्क ऑन मेंटल हेल्थ। ताहम जम्मू कश्मीर के हालात पर नजर रखने वाले बाज तजिया निगारों का कहना है कि इलाके में बरसों से जारी बदअमनी और गैर यकीनी नौजवान नस्ल पर गालिब आ चुकी है और इन्हें तेजी के साथ निगल रही है। इतना लगता है कोई रास्ता नहीं है तो सुसाइडल मोड बन जाता है। सुसाइडल में अब मिलिटेंसी, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जाते हैं। तो हम देखते हैं आए दिन यहाँ बच्चे मरते हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक साल से स्कूलों और कॉलेजों के तकरीबन 24 लाख तालिब इल्म क्लासरूम से दूर हैं। जुबैर अहमद डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का शुक्रिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का शुक्रिया, हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत की बंदरगाह पर होने वाले धमाके ने जहां मकामी अफराद की जिंदगियों को मुतासिर किया, वहीं ऐसे बहुत से लोगों को भी एक नई मुश्किल में डाल दिया है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में लबनान आए थे। बैरूत में मुकीम शामी पनाहगज़ीन कहते हैं कि ऐसी तबाही उन्होंने जंग में भी नहीं देखी, जबकि लबनान में काम करने वाले लाखों गैर मुल्की घरेलू मुलाजिमीन जो इस हादसे में अपनी नौकरियां और रिहाइश खो चुके हैं वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से फंस कर रह गए हैं। ये शाम से ताल्लुक रखने वाले अहमद सतीफी हैं, जो अपनी बीवी और 2 बच्चियों को शाम में जंग की तबाहकारियों से बचाकर बैरूत के करंटीना नामी इलाके में आबाद हुए थे, लेकिन वो अपने अहले खाना को बैरूत की बंदरगाह के धमाके की तबाहकारी से न बचा सके, जो महज चंद सेकंडों में लुक़मा अजल बन गए। उनका घर मलबे का ढेर बन चुका है, जिसमें दबी यादें उनके लिए दर्दनाक दास्तानें हैं। मेरा खानदान 2014 में जंग से फरार होकर यहाँ आया और यहाँ किराए पर एक घर लिया। धमाके के वक्त मैं यहाँ मौजूद नहीं था, कहीं बहुत दूर था। शाम 6 बजे के करीब धमाके की आवाज आई और धुआं उठने लगा। मैंने खुद को ढांपा, घर पहुँचा तो देखा कि मेरी बेटी दीवार से टकराकर मर चुकी थी। धमाके के वक्त हम सब यहाँ बाहर बैठे हुए थे, ये खुदा का करना था, वरना हम सब मर जाते। शाम ही से ताल्लुक रखने वाले उदय कतान भी इस मोहल्ले के रिहायशी हैं, लेकिन वो और उनके रिश्तेदार इस धमाके में महफूज रहे। उन्होंने इस वाक़े की कुछ तस्वीर संभाल रखी हैं, लेकिन उन्हें देखना किसी अजियत से कम नहीं। ये फ्रिज और सब कुछ हम पर गिर गया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम बच गए। आपने तस्वीरें देखी है ना? ये इलाका एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ उदय और उनके रिश्तेदार मलबे के ढेरों के सामने अपने रोजमर्रा मामूलात में मसरूफ नजर आते हैं। इस धमाके के बाद लबनान में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले उन लाखों घरेलू मुलाजमीन को खास कर एक और बहरान का सामना है, जिनकी मुलाजमतें और मुआवजे पहले ही लबनान की खराब मईशत के बाइस खतरे में थे। इनमें से बहुत से अपनी रिहाइश और मुलाजिमतों से हाथ धो बैठने के बाद अब अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। इस मकसद के लिए वो लबनान में अपने कौंसिल खानों के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। हम तमाम हुकूमतों से अपील करते हैं कि वो लबनान से इन अफराद के इनखला के लिए न सिर्फ ठोस इक़दाम करें, बल्कि दस्तावेज़ात के बगैर अफराद को बिला मशरूत उनके मुल्क वापस भेजने का इंतजाम भी करें। उनकी जानें
उन्हें बचाने के लिए। ताहम लबनान में काम की गर्ज से दाखिल होने के लिए राइज मुतनाज़ कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम के तहत ये तारिकीन वतन अपने आजिर की इजाज़त के बगैर किसी सूरत भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से लबनान में उनकी कानूनी हैसियत ख़त्म की जा सकती है। इंसानी हुकूक की तंजीमें इस कानून को गैर इंसानी करार देती हैं। बेरूत धमाके ने मुआशी मुश्किलात और सियासी इंतशार के शिकार इस मुल्क के मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। इससे मुतासिर अफराद अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी का शिकार नजर आते हैं। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। चीन में आबाद कई वीगर मुसलमानों ने हुकूमती क्रैकडाउन से भागकर तुर्की में पनाह ले रखी है। मुबस्सिरीन का कहना है कि चीन की हुकूमत के कायम करदा इस्लाही मराकज़ में रहने वाले वीगर मुसलमानों की हालत हिरासती कैंपों में रहने वालों जैसी है। चीन अब वीगरों की जानिब से तनकीद को दबाने के लिए तुर्की पर दबाव बढ़ा रहा है, जिसके बायस वीगर पनाहगुज़ीन तुर्की में भी अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं। तुर्की में एक हालिया मुजाहरे के दौरान वीगर कम्युनिटी के सरगर्म कारकुनों ने शिकवा किया कि वो वहां भी चीन के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकते। इससे पहले तुर्क पुलिस ने उन कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने अपने खानदान के उन अफराद की तस्वीरों वाली टी शर्ट्स पहन रखी थी जिन्हें चीनी हुक्काम ने हिरासत में रखा हुआ है। पुलिस ने कहा कि अब तुम जा सकते हो, लेकिन इन टी शर्ट्स के साथ नहीं। हमने पूछा क्यों? अफसर ने कहा कि तुम नहीं पहन सकते, तुम्हें इन्हें उल्टा करके पहनना होगा। हमें मजबूर किया गया कि हम ये कमीज उल्टी करके पहने, जिससे न सिर्फ हमारी बल्कि हमारी माओं और भाइयों की भी इज्जत नफ्स मजरूह हुई। तुर्की उन ममालिक में से है जहां बड़ी तादाद में वीगर मुसलमानों ने पनाह ले रखी है। उनकी अक्सरियत इस्तांबुल में मुकीम है। अब्दुल रहीम अमीन फराज 7 बरस पहले इस्तांबुल आए थे। उनकी अहलिया चीन के एक हिरासती मरकज में है। अब्दुल रहीम को खतरा है कि चीन पर तनकीद करके वो अब तुर्क हुकाम का हदफ बन गए हैं। पुलिस ने मुझे एक रेस्टोरेंट में बंद रखा और फिर मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। उन्होंने मुझे एक दस्तावेज पर दस्तखत करने को कहा। उसमें लिखा था कि ये शख्स ऐसी तंजीमों से ताल्लुक रखता है जो तुर्की के लिए खतरा है। मैंने कहा मेरा उन गिरोहों से कोई ताल्लुक नहीं और मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले वकील इब्राहिम एरजिन का कहना है कि अब्दुल रहीम जैसे केस आम बात हैं। लोगों को बगैर सबूत के गैर मुल्की दहशतगर्द या जंगजू होने के इल्जामात में हिरासत में रखा जाता है। हम जानते हैं कि चीन तुर्क वजारत खारजा, वजारत दाखिला और सिक्योरिटी फोर्सेस पर जबरदस्त दबाव डाल रहा है। इन हुकाम से हमारी बातचीत के दौरान हमें बताया गया था कि 5 से 10 वीगुर मुसलमानों को चीन के हवाले करने से तुर्की को मुआशी और सियासी फायदा हासिल होगा। साबिक तुर्क वजीर आजम अहमद दावतुगलो अर्दवान हुकूमत पर वीगर मुसलमानों की कुर्बानी के बदले चीन के साथ मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने का इल्जाम आयद करते हैं। सदर उर्दवान ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तुर्की ने लाखों अफराद को अपने यहाँ पनाह दी है। जैसे जैसे वीगर अफराद पर चीन के जबर की खबरें बाहर आ रही हैं, तुर्क लीडर आलमी सतह पर चीन की मुजम्मत से अपने आप को बाज रखे हुए हैं। इस खामोशी से अब्दुल रहीम जैसे वीगर इज़्तिराब का शिकार हो रहे हैं। हुकाम ने खामोशी इख्तियार की हुई है और इस खामोशी की वजह से मैं खौफजदा हूँ। मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में बात नहीं कर सकता। अगर करूँ तो डरावने ख्यालात में परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा मुस्तकबिल एक अनजाने अंधेरे में है। अब्दुल रहीम फिलहाल अपनी शायरी में ही सुकून तलाश कर रहे हैं। उन्हें बरसों से अपने अहले खाना की कोई खबर नहीं आई और बहुत से वीगर अफराद की तरह उन्हें भी मुस्तकबिल से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। डोरियन जोन्स के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और आप हमें इस प्रोग्राम के बारे में आगाह कर सकते हैं अपने फीडबैक से facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।